Assalamu alaikum everyone. This is the first episode of Cricket Talk, and we are here today because we have the most anticipated Pakistan and India's match tonight at 7 p.m. And joining me today is my friend Umar who is an exceptional cricketer through my school journey, and we share quite a lot of interest in talking about cricket. So, Umar, would you like to welcome our viewers and like talk a bit? Thank you, Faaiz, for having me. Nothing bigger than today's match. And of course, when it's Pakistan versus India, all the nerves, everyone, the excitement, the atmosphere, unparalleled. Of course, Faaiz himself, he is very humble and he himself has been a very good cricketer. Not better than me, of course, but he's been trying. He is a very enthusiastic cricket analyst as well, which is why I hope that this show will be very fun to watch and to record as well. Okay, so beginning with our first thought, Omar, did you watch the matches last night? I did, of course. So, what's the key takeaway? What I have seen is that teams batting first are at a disadvantage. They don't seem to score well. The ball is a bit slow. It's not coming on the bat. So, what do you think Pakistan should do in such situation? When it comes to Pakistan, I think it's slightly different, but I would first like to go to the matches last night. Both teams that were playing, all teams that were playing, rather, all four teams, they were not familiar with the situation and the conditions. And then when it comes to, even if you remember the IPL back then, all teams who were chasing were at an advantage. Now, when it comes to Pakistan versus India, you know that chasing is a very different ball game altogether because of the pressure, because of the nerves, because of the atmosphere and the crowd and the expectations that both nations have from the respective players, which accounts to unnecessary pressure. And then it means that any team chasing would be at a disadvantage, but any team chasing is at a disadvantage if a good score is put on the board. But if you look at the first match, I mean, South Africa, they are hot favorites as well. They're always termed to be the chokers, and we don't really expect them to do well. But in the practice match, they managed to score 180 odd against Pakistan and chased down 23 runs in the last over. So I had high expectations for them, but the fact that they crumbled and they were like nowhere near their best. Do you think it's more about the pressure or the situation or the condition itself? Because you saw them chase 180 on the same pitch, same conditions, but when they went against Australia, who aren't there at their best either. So is it more about pressure or about the pitch and the condition and everything? Because they literally chased down 180. That's something different because you have the added effect of chasing down a total and this pressure with the scoreboard and all. But you also have to look at the way they chased down that 180, the approach that they had. They had so many wickets in their hands, but they I don't know what they were waiting for. They just didn't launch till the very end and then had to hit a four of the second last ball, which I would term as a lucky win and not as a calculated win. And then which means that they were scared to chase because of the conditions and because they're unfamiliar with these conditions. Okay. So before I ask you more questions, Guys, I've lost your audio. Can you hear us now? Hello? I can't hear you. Okay, let me just mute myself. Can you hear us? Can you try rejoining? Let me rejoin. I'll try and rejoin. Okay. Meanwhile, let's go to Mohid Hassan. Hello, Mohid. How are you? Great. Do I have to speak in English? We actually started off in English, but we agreed कि हम end में जाकर उर्दू भी बोल लेंगे, कोई मसला नहीं है. बस ठीक है, मैं आ गया. उर्दू में गुफ्तगू करते हैं. We were forced to start in English by Faaiz and his colonial mindset, but उर्दू बोल लो. हाँ, हम बोल सकते हैं. मोहित, आज का मैच क्या तुम्हारा अच्छी है? आज के मैच का क्या तरजीह है? हाई क्रिएटेड है, तुम तैयार हो? पाकिस्तान जीत रहा है या नहीं? हाँ,
उस्मान समीउद्दीन ने जो लिखा हुआ था कि वो शाहीन की 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले ओवर में किला उड़ाता है। हाँ 61 तो इनिंग्स में से 20 टाइम्स उसने हाँ फर्स्ट ओवर विकेट ली है। आपको लग रहा है 21 टाइम्स, एक दफा 2 विकेट ली थी। अच्छा रोहित शर्मा की हाँ जा रही है इस बार? इंशाल्लाह। तो दूसरा कौन, फिर राहुल कर रहे हो अपने? केएल राहुल, उसको तो हाँ मैथ्यू रोहित से हेडन ने ज्यादा राहुल के लिए गए डेंजरस तो राहुल है। राहुल हाँ और इवन बिल्कुल। मैथ्यू हेडन ने भी बोला उस दिन दैट उसको प्रेज किया है, और ऑपोजिशन का कोच अगर प्रेज करे तो बड़ी बात होती है। आई मीन वो लेकिन डू यू थिंक दैट उस पे इतनी हाइप क्रिएट हो गई है दैट इवेंचुअली ही वुड फॉल? मतलब people are talking about him in media and how he is their savior, but हमने यूजुअली ये देखा है कि जब एक बंदे पे इतनी हाइप क्रिएट करते हैं ना, मैच आता है वो फ्लॉप हो जाता है, स्पेशली हाई प्रेशर वाला। बिकॉज देयर इज राहुल दिस की बात हो रही है। क्या अब हाँ मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था, पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा हूँ, इंटरनेशनली हाँ एवरीवनस पुटिंग लाइमलाइट ऑन केएल राहुल और विराट कोहली को ऐसे जैसे कोई नहीं, ये फखर जमान हो गया हमारा एक किस्म का, कि बाबर मेन चीज है, ये फखर चल गया तो ठीक है, ना चला तो कोई बात नहीं। तो विराट कोहली हाँ। का भी यही हिसाब हो रहा है। सो डू यू थिंक कि हम उन्होंने अननेसेसरी प्रेशर डाल दिया और वो उड़ सकता है किसी के हाथों जल्दी? यार मैं तो समझता हूँ कि बाकी पाकिस्तानियों का तो यही होता है कि जिसको थोड़ी सी इज्जत दे दो तो वो निकल जाता है, मगर एक भारतीयों का वो रोहित शर्मा का तो मुझे याद है, पता नहीं 17 की बात थी या 19 की बात थी कि उसको बड़ा वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि पता नहीं अभी फॉर्म में नहीं था, तो उसने हम्म। पाकिस्तान को आके ऐसा फेंटा था, वो तो 140 मारा था। तो मैं तो डरूंगा ही राहुल से। तो बाकी रोहित शर्मा मुझे लगता है वो जल्दी आउट हो जाना चाहिए उसको, उसकी टेंशन नहीं है। और विराट कोहली तो वैसे ही पाकिस्तान टीम के सामने क्या चल रहा है, हमेशा तो तो चलता रहा है, इस दफा तो माफ कर देगा इंशाल्लाह। तुम लोगों को लगता है कि हैदर अली खेलेगा आसिफ अली की जगह? नहीं, आसिफ आसिफ खेलेगा। अली की जगह? हम्म। आसिफ अली तो आसिफ खेलेगा खेलेगा। लेकिन हाँ मुझे, हैदर नहीं खेलेगा। मैं लेकिन कहता हूँ अगर कि हैदर नहीं हफीज की खेलेगा। जगह उसको हैदर को खिलाना चाहिए। नहीं, हफीज नहीं काफी आउट ऑफ लेकिन फॉर्म है। हफीज ऑफ स्पिन की ऑप्शन आउट बहुत ऑफ अच्छी है, और फॉर्म। जिस तरह की पिच है ना यूएई की, ये हफीज रुक गया ना तो लिटरली ये वो बुली बन जाएगा जो हमें एक सही साल पुराना हफीज याद है, वो जो सही बात है। शुरू करता है 20 पे 20 सही रन, एंड में 100 सही कर बात है। जाता है मेरा 50 बॉलों पे। मेरा मोहित से एक सवाल है। जी जी। वहाब रियाज के साथ कितनी ज्यादती है यार, सिलेक्ट ही नहीं किया उसने। बिल्कुल यार। हम हाँ यार, रेट्स नहीं अच्छे आ रहे थे तो उसको नीचे कर दिया है। मार्केट बहुत ने गलत जवाब दे किया दिया इन्होंने। था। वो कहते हैं ना कि नहीं प्री मार्केट डिटरमिन करती है, तो मार्केट ने कह दिया था कि नहीं यार वैसे वो ये आ नहीं, भाई। सकता लेकिन था, धोनी की जगह आ सकता था, वो आप एक्सपीरियंस देखेंगे होता उसकी है जैसे कि परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उसने पीपीएल में अच्छा इसके खेला अंदर है। इसके अंदर भी अच्छा खेला है। फिर ये पीएसएल से लेके अभी ये जो अभी हमारी जो लीग हुई है उसके अंदर भी अच्छा खेला है। तो सेकंड हाईएस्ट यार विकेट वो टेकर अच्छा है, था। वो अच्छा है, क्या नाम है वो जो मोहम्मद वसीम है, हाँ, उसकी वुड अच्छी यू प्रेफर निकालता है। वसीम ओवर रऊफ वैसे, कंसीडरिंग वसीम को बैटिंग भी आती है? अगेंस्ट हाँ इंडिया नो। नहीं वैसे बाद में टूर्नामेंट में वसीम इनएक्सपीरियंस्ड है वो, इंडिया में वो प्रेशर बड़ा होता है, सो उसमें क्रम्बल भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हाँ इंडिया के साथ तो नहीं, मगर आगे मुझे लगता है कि कोई ना कोई मैच उसको शायद खिला ही दें अगर हाईएस्ट ऑफ भाई को कोई। अफगानिस्तान के अगेंस्ट या नामीबिया के अगेंस्ट शायद। अफगानिस्तान से याद है वो मोहम्मद शहजाद कह रहा था उसका आईसीसी की वीडियो जो आई है कि फाइनल की प्रेडिक्शन ना, तो उसमें उसका कहना था कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान होगा फाइनल में। तो अल्लाह क्या उसकी कहते हैं आप इस बात बाग से? मुबारक करे। हमारा इमाद वसीम वैसे भी अफगानिस्तान के खिलाफ स्पेशल फटे करके आया है वो, नहीं उसने वो नहीं नहीं, वो तो वर्ल्ड कप प्यार में भी करके आया छक्के है, ऐसा मार तो के ना मैच कहो। जिताए थे। प्यार वो को बढ़ना नहीं कहना चाहिए। हाँ सही बात है। आप एक फाइन लाइन है फैज प्यार और जंग के बीच बिल्कुल में। बिल्कुल। लेकिन ये टॉपिक दूसरी तरफ निकल गया, हमें वापस आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से हाँ मैच में। लेकिन अगर तुमने देखो, ये इंडिया जो है हर वक्त मौका मौका लगा रहता है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। कंसिडरिंग पाकिस्तान, देखो वी डोंट हैव दैट प्रेशर कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं दफा कि यार चलो इस बार भी हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वोंट यू थिंक कि उन पर ज्यादा प्रेशर होता है, कि उनको पास हमेशा ही होता है कि हमने जीत कर आना है, वेराज हमारा होता है कि हम हार भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए। I've been always wondering on this, and this is something that kind of confused me at times. तो तुम लोगों का क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल से ये तो आवाम के ऊपर प्रेशर होता है, ये तो हम तुम जैसे लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, और उस साइड के ऊपर भी। तो इनका जो मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये सारों का, विराट का, रोहित भी मेरे ख्याल से ये कह रहा था, जडेजा ये कह रहा था कि उनके लिए लाइक अब ऐसा ऐसे काफी नॉर्मल गेम बन चुकी है, विच इज वेरी ट्रू, बननी चाहिए। मगर पाकिस्तान चूंकि अब अंडरडॉग के तौर पे आ रहा है, टीम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आई थिंक लाइक स्टिल द प्रेशर इज टोटली ऑन पाकिस्तानी टीम। और ओवर कॉन्फिडेंस, यानी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इतने मैच तो उन्होंने हरा दिए हैं, तो यानी एक और हरा देंगे तो क्या बड़ी बात है। मगर मुझे फिर भी लगता है कि इट गोज बोथ वेज। असल में होता ये है कि हम लोग प्रेशर उनके ऊपर डालने की तो बहुत अच्छी टैक्टिक है कि हम हर मैच से पहले कह दें कि यार फेवरेट्स तो वही हैं, हमें तो क्रिकेट आती नहीं है। लेकिन फिर हम एक तो बहुत अपने आप को लेबल कर देते हैं एज अंडरडॉग्स, और अंडरडॉग्स के लिए जीतना हमेशा उनको फिर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देनी होती है। दूसरी बात है, हम साइकोलॉजिकली ना हम अपनी कौम को कन्विंस करने के लिए कि यार हम तो, मेरा ख्याल है कि जीत हार स्पोर्ट का पार्ट होती है। अगर हम जीत भी जाएं हार भी जाएं, लेकिन साइकोलॉजिकली कभी नहीं हारना चाहिए। हमें हर गेम से पहले सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज एन इक्वली गुड टीम और वो आपके साथ compete करेगी। अच्छा, another point जो मैंने बहुत मीडिया में देखा आजकल, they're talking about how Babar and Rizwan slow up everything and we are actually at disadvantage with them opening. ठीक है, my personal view is कि I'm in favor of them opening. Wickets ना गिरें शुरू में, वो steady platform दें, तो easy opportunity है for फखर जमान, फीस, अमाद वसीम, हसन अली, वो आकर ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेलें। जिस तरह याद है इंग्लैंड के खिलाफ हमारा T20 हुआ था, सारे आ रहे 24 रन कर रहे 6 बॉलों पे, और हम एंड में 230 के पास कर गए थे। ठीक है, लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आर यू इन फेवर ऑफ दिस ओपनिंग पार्टनरशिप और नॉट? आई पर्सनली एम। मैं भी बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। और इसमें एक और वजह ये है कि यूएई की जो पिच है, तो उसमें आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए, चाहे वो स्लो हो। तो स्लो स्टार्ट होने से मसला नहीं है। यूएई के ऊपर 160 अगर पाकिस्तान पोस्ट करते तो दैट इज अ वेरी डिफेंडेबल टोटल। तो मैं यही समझता हूँ कि ऊपर से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और आप यानी ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है, ये भी पूछने वाली बात है ना। हैदर अली को तो ये इंटरनेशनल में वो कभी लोग उसके कहते हैं फखर ओपन के ओपन लिए करे, करते नहीं है। बाबर वन डाउन आ जाए। हाँ हाँ, तो वो फखर, या फखर और बाबर ओपन कर और रिजवान नीचे आ जाए। मगर अभी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन चला हुआ है, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और टीम की ओपनिंग पेयर का इतनी अच्छी पार्टनरशिप एवरेज होगी। तो आई थिंक यूएई में स्पेशली इस कंडीशंस पे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टॉप के लाइक। अगर ये स्लो भी खेलें तो विकेटें कम से कम बची रहे, और एक बंदा कम से कम एंकर बन के इनिंग्स को लेके चलता रहा। मेरा तो यही ख्याल है इसमें। उमर, तुम, आई नो यू हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। Oh, he left. He must have accidentally. He must हाँ have नहीं, accidentally उसका left. इंटरनेट मेरे ख्याल से, हाँ, उसका उसकी इंटरनेट। उसकी स्क्रीन है। लेकिन तुम आज बताओ, तुम आज कहाँ मैच देख रहे हो? इज इट लम्स में स्क्रीनिंग करवाने जा रहे हो या? यार लम्स में वो सेंट्रल कोर्टयार्ड में हो रही है स्क्रीनिंग। मैं सुना पीडीसी पे, ओ खोखे यार पर उधर हो। बहुत बड़ी वो उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, तो आई एम होपिंग कि अगर उधर वो लगाते हैं मैच तो क्या बात है। मैं वैसे जा रहा हूँ, लम्स ही जा रहा हूँ। तो मैं तो घर पे, माय होल फैमिली इज अ डाई क्रिकेट फैन, आई मीन, और हम हाँ खानदान को भी बुलाते हैं सारे। इट्स सच अ गुड इवेंट। लेकिन फायदा, आई रिमेंबर कराची लाहौर का मैच भी एंड पीएसएल, दैट्स अ फैमिली ओकेजन एंड माय लिटिल ब्रदर इज फ्रॉम कराची। सो वो होता है, ये पूरा खानदान एक तरफ और छोटा भाई एक तरफ। सो इट्स काइंड लाइक बड़ा बड़ा दिन है कराची आज। लेकिन ओवरऑल वो अपनी प्रिडिक्शन दो फाइनल के, क्या बनेगा इसमें और वर्ल्ड कप में, आज के मैच में? ये मैच में, आज के मैच में, यार सबसे पहले तो आई थिंक लाइक इट कुड बी अ गुड मैच। एंड आई एम प्राइमरीली सेइंग दिस बिकॉज़ आई एम स्टार्ट फॉर वन, कि कोई ऐसा मैच हो जिसके अंदर वो ये ना हो कि बस शुरू के अंदर डिटरमिन हो गया कि अब ये जीत रहा है या ये जीत रहा है, तो बस पूरा मैच इसी तरह चलता रहा, बल्कि टू एंड फ्रो होता रहा। तो आई थिंक लाइक 160 से 170 के दरम्यान में हम पहले बैटिंग करने वाली टीम का हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो और आई थिंक इट वुड बी वेरी क्लोज, यानी हो सकता है चेज हो जाए, बट कम से कम क्लोज जरूर होगा। दैट्स माय आई प्रेडिक्शन। थिंक जो भी तुम्हारी टॉस क्या प्रेडिक्शन है? जीतेगा ना, जो जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा पहले। ठीक है,
क्लियरली पिछले कल वाले 2 मैचेस से भी नजर आया कि जिसने पहले बॉलिंग की है उसको बेनिफिट हुआ है. They would love to ball first and batting first. जो भी करेगा ना, he would post around 170 to 180. Because both teams have got ample firepower with the batting. I mean, India का देखो, KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, पे हार्दिक पांड्या सारे छक्के मार सकते हैं. ठीक है, सो उनका वो मसला नहीं है कि स्कोर बोर्ड कैसे एक्सेलरेट करें. मेरा पाकिस्तान जो है वो अपने बड़ा स्टेडीली हर ओवर में 8 रन, बाबर आजम सिंह एक चौका फिर सिंगल्स लेते रहते पूरे ओवर में. तो वो वाला सिचुएशन है. आई थिंक एट द एंड ना स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, कंसिडरिंग कि उन्होंने अश्विन को वापस लेकर आए. उसने प्रैक्टिस मैचेस में भी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों को फौरन आउट कर दिया था. और जाडेजा का पता नहीं क्या सीन है. बात हो वो रही है? किसकी बात हो रही है? अश्विन किसकी बात हो रही थी? अश्विन की, बेशक. हाँ. और हाँ, जडेजा बिल्कुल. जो है वो पता नहीं क्या वो ही बॉल्स एट सच अ क्विक पेस इज ओवर, पता भी नहीं चलता उसके ओवर पूरे खत्म हो जाते हैं. So at the end of ऐसे the ही. day, I think it depends more on how the spinners perform and how the top 2 of both team perform. जिसने top 2 को उड़ा दिया ना शुरू में, मैच उसके कंट्रोल में. बेशक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है दोनों टीम्स की, लेकिन सारे जानते हैं कि मेन जो एंकर स्टे और मेन आर्सेनल्स हैं दोनों टीमों की, वो ऊपर वाली ही हैं. ऐसे ही. So Pakistan or India, you tell realistically. फिर रियलिस्टिक भी ना पूछो, दिल की पूछो. मैं तो दिल की बताऊंगा. पाकिस्तान 2 मिनट. हाँ, पाकिस्तान ही. I even यार मगर invested वो money इंडिया on का वो this जो bet. ईशान किशान है, ईशान हाँ, किशान नाम है, क्या नाम है? ईशान यार वो किशन. हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज है, मगर उसकी टीम में मेरा नहीं ख्याल की जगह बनती है. मेरे ख्याल से यही मगर मसला है, उसने इसलिए कल टीम अनाउंस नहीं की क्योंकि समझ नहीं आ रही उसकी जगह कहाँ बनती. वो हाँ, ओपनर आता है हाँ, वहां पर, पहले उनके पास 2 हाँ, बॉल, उसके बाद फिर वो विराट कोहली आता है, फिर उसके बाद उन्होंने वो पैंट वगैरह भी रखे हुए हैं. मेरे ख्याल यादव, से अगर यादव. अगर अगर वो खिलाएंगे ना किशान को, तो वो 2 डाउन खिलाएंगे कोहली के बाद, पर्सनली अगर वो फिर नहीं खिलाएंगे. खिलाएंगे, फिर नहीं खिलाएंगे. हाँ, वो हिसाब है जैसे केएल राहुल एक जमाने में नहीं वेस्ट होता रहता था नीचे खेल खेल के, wasn't his prime ऐसे ही, position. तो वो वाला ऐसे हिसाब ही. हो सकता है. उमर तो अकमल की तरह. तूने जान के रेफरेंस बोला. So with that हाँ, being said, that concludes our first episode of Trick Friends. I hope you all liked it, and thank you to my guests for actually coming out and speaking on it. So thank you so much. Thank you, Mohid. बहुत और शुक्रिया.